Hello, assalamu alaikum, and very good evening to all of you. You are watching your Shahid Sir channel, Shahid Sir's physics class. So today our topic is related to the eye. The day before yesterday, we explained the structure of eye. So today I will take very quickly the working of the eye, and there are some important terms that I am going to share with you. Okay, stay with your Shahid Sir. So here we will take the very simple and very quickly we will take the working of the eye. So before I will take this, let me clear you that since normal function of eye क्या है, eye is said to be normal. ये point एक आप याद रखेंगे, eye is said to be normal if the object's image is exactly formed on the retina. अगर आपको याद होगा कल मैंने आपको बोला था कि आंख में बेटा इन आर आई देयर आर 3 लेयर्स. Innermost layer that is called as retina, right? And the middle one I called it that is choroid, and the outer is sclerotic. Yes, sclerotic. It's the white of the eye. And then it is the pigment layer that is called choroid, and then you have a screen. Eye has a screen on which the image is formed, that is retina. Okay, my dear, if you remember. So eye is said to be normal if, shabash, the image is formed on the retina. Now I have already told you in the chapter number 1 that if the image is obtained on the screen, that image is called as real image, and real images are inverted. Real images are inverted. So since, my dear, remember, if we are talking about the working of the eye, आप इससे इसको मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं. सपोज दिस इज द कॉर्निया एंड दिस इज द फुल आई. तो मैं डायग्राम के लिए हम इतना बनाएंगे. एंड वी हैव व्हाट लेंस? वेरी गुड, कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है बेटा. सपोज ऑब्जेक्ट इज हियर, तो वन रे विल फॉल लाइक दिस, अनदर विल फॉल लाइक दिस, इसी से लाइक दिस. तो इमेज जो है यहाँ पे बनेगी बेटा, तो रेटिना पे बनेगी, बट दैट इज इन्वर्टेड. मैंने यहाँ पे इस ऐसे लिखा, तो इट इज इन्वर्टेड सिंस इट इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. तो ये भी एक तरीका है जिससे आप लिख सकते हैं. तो वर्किंग ऑफ द आई में अब आपको याद क्या रखना है? जस्ट स्टे विद योर शाहिद सर. I have already told you that there are different types of you can say medium. There are different types of media that are present in the eye. Light will pass through, first of all, cornea. So first refraction takes place on what? Cornea. Then you have an aqueous humor, so it will pass through the aqueous humor. Then it will pass through the lens. Then we have another humoral system, that is vitreous humor. So my dear, how many refractions do occur in our eye? So first refraction at cornea, then you have an aqueous humor, then you have the lens, and then you have the last vitreous humor. So basically there occur 4 types of refractions in our eye, and you have to remember, my dear, the image formed. Very good. Image formed is number 1 real and inverted. Okay, my dear. So this is the working of the eye. It is not yet clear. वर्किंग में थोड़ा बहुत पार्ट रह जाता है जो कल मैंने आपको नहीं बोला. देखिए बेटा, आई एम गोइंग टू रब दिस. देखो एग्जाम के लिए क्या आ सकता है, ह्यूमन आई में इमेज किस तरह की बनती है. वन इज रियल इमेज एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. तो ये क्वेश्चन आ सकता है. लेकिन याद करो बेटा, जब हमने कहा था कि स्क्रीन ऑफ द आई इज कॉल्ड रेटिना. अब ये रेटिना जो है, अगर हम इसको एक्सपोज करेंगे रेटिना को, रेटिना में 2 किस्म के सेल्स होते हैं बेटा. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन व्हाट? रेटिना. वन रॉड शेप्ड, अनदर कोन शेप्ड.
तो दे आर जनरली कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स। तो आप ये कैसे याद रखेंगे? सी फॉर कलर, तो कोन्स जो है it will help us to detect the colors, what type of color you are seeing. That is controlled by what? Cone is responsible for determining of the color. And इसी तरह rods जो हमारे पास है, it checks the intensity, whether the light is bright or whether the light is dim. I hope it is clear too. तो these are the rods and cones. तो rods में एक प्रोटीन पाया जाता है, that is called rhodopsin. तो rhodopsin जो है ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। लाइट रेज जब आंखों पे पड़ जाती है तो लास्ट ये रेटिना पे आती है, तो रेटिना एक इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह जाती है rhodopsin पे, और rhodopsin इसको ऑप्टिक नर्व की तरह ले जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और आपको पता चलता है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। इसी तरह अगर आपको कोई कलर देखना होता है तो कोन्स में भी एक रोडोप्सिन, एक्चुअली प्रोटीन्स है, एक इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है जिसका नाम है आयोडोप्सिन। तो आयोडोप्सिन भी कैसे काम करता है? इलेक्ट्रोलाइट के मतलब जैसे काम करता है, जो ही लाइट इस पे पड़ती है कोन्स पे, दे सीक्रेट आयोडोप्सिन, और आयोडोप्सिन एक्चुअली ट्रांसमिट द मैसेज टू द ब्रेन विया ऑप्टिक नर्व, और आपको पता चलता है कि ये कलर कौन सा है। आई होप इट इज क्लियर। तो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द आई। तो फिर से व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार, व्हाट वी हैव रेड सो फार, लेट अस रिकैप्चुलेट दैट। आई सेड दैट आई इज सेड टू बी नॉर्मल if the image is exactly forward on the retina, right my dear? And retina is the functional unit of eye. ये already मैंने आपको कहा। Second point मैंने आपको बोला है कि जो आंख में जो image बनती है, since we have a convex lens fitted inside our eye, so it will form रियल इमेज, एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, जिसकी डायग्राम अभी मैंने आपके सामने रखी। ठीक है बेटा। और रेटिना में अगर हम देखेंगे, रेटिना में दो किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। वन इज द रॉड सेल्स, दे आर यूज्ड टू चेक द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, वेदर यू सी द ब्राइट लाइट और वेदर यू सी द डिम लाइट। वेरी गुड। तो इसी तरह कोन्स जो है, दे डिटेक्ट द कलर, व्हाट टाइप ऑफ कलर यू आर एक्चुअली सीइंग। एंड इनमें रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास ऑन करते हैं, ये डायरेक्टली इन कनेक्शन विद द ऑप्टिक नर्व होते हैं, तो दे सेंड ए सिग्नल टू द ब्रेन, एंड दैट इज व्हाई यू आर इन अ पोजीशन टू चेक द इंटेंसिटी एंड टू डिटरमाइन द कलर व्हाट यू ऑब्जर्व। आई होप इट इज क्लियर, इट इज वेरी क्लियर। देखो बेटा, जो चिकन्स होते हैं, चिकन्स दे जो वो जल्दी जल्दी अपने मतलब अपने घरों में चले जाते हैं। जब ये थोड़ा बहुत अंधेरा हो जाता है, उनमें क्या कमी होती है? उनमें रॉड्स की कमी होती है, वो इंटेंसिटी को चेक नहीं कर पाते हैं। भाई अभी भी तो थोड़ा लाइट है, लेकिन उनमें रॉड्स की कमी होने की वजह से वो सवेरे अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। राइट माय डियर। इसी तरह अगर हम कोई कलर blind person है, he is not in a position to see the different colors, तो इसका मतलब क्या है? divide of the cones, उनमें cones नहीं पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। so this was the short description related to the working of the eye, हमारी आंख किस तरह वर्क करती है। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। थैंक यू बेटा। Okay beta, another function of eye you can see clearly on the board. There is a term that is persistence of vision. देखो बेटा, आंख की जो function है ना, it is generally called as visual sensation. Eye has a function that is called visual sensation, and eye में एक function है that is called persistence of the vision. You can easily see that. What does it mean, persistence of a vision? For example, I am showing you the object, and you can easily see the object because eye has a sensation of vision. It can clearly see the object. तो once you see the object, अगर मैं इस object को अब हटाऊंगा, I am removing the object in front of your eyes, but my dear, still this object will remain in your mind. Are you getting my point? So according to the experiment, it has been seen that after the removal of object की image 1/16 सेकेंड तक persist रहती है। तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज फिर भी इमेज रहना,
जब हम इसको रिमूव भी करेंगे तो उस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, परसिस्टेंस ऑफ विजन। देखो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। द कंटिन्यूएंस ऑफ सेंसेशन ऑफ आई, सेंसेशन ऑफ आई मैंने अभी कहा, वी हैव अ विजुअल सेंसेशन ऑफ द आई। जब आंख किसी चीज को देखती है, यानी द कंटिन्यूएंस ऑफ सेंसेशन ऑफ आई फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपने ऑब्जेक्ट को देखा, फिर उस ऑब्जेक्ट को हम रिमूव करेंगे, फिर भी ये जो इमेज है ना ऑब्जेक्ट की भी, ये थोड़ी देर तक कंटिन्यू रहती है। उस कंटिन्यू रहने की फंक्शन को क्या कहते हैं बेटा आंख में, इट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ द विजन। और ये कितनी देर तक रहता है बेटा, इट इज 1/16 सेकेंड। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू बेटा। Okay dear, now another term that is very important, it is the power of accommodation. Power of accommodation, याद रखना है बेटा, जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, देखो कैसे हम आपको समझाएंगे। सपोज आपको दूर पे कोई ऑब्जेक्ट है, यानी बहुत दूर, आपके आंखों के सामने नहीं है, बट आंखों के दूर कोई ऑब्जेक्ट आपको देखना है, ठीक है। तो अब आप क्या करो, आप ऐसे अपने आंखें जो है बड़ी करोगे, ऐसे लाइक दिस, ऐसे देखोगे, ठीक है ना। अगर आपकी आंखों को अब वो ऑब्जेक्ट देखना है, वो बिल्कुल आपकी आंखों के करीब हो, तो आप अपनी आंखों को लाइक दिस ऐसे करोगे। आप ये ऐसा क्यों करते हो? कभी आप अपनी आंखों को बड़ा करते हो, कभी आप अपनी आंखों को छोटा करते हो। एक्चुअली जो पावर ऑफ एकोमोडेशन ने, कल मैंने ये बताया था आपको, जो लेंस है ना बेटा, लेंस, तो ऊपर लेंस में 3 मसल्स हैं, नीचे भी लेंस में 3 मसल्स है। ये मान लीजिएगा ये लेंस है, तो ऊपर 3 नीचे 3, तो दिस लेंस इज ये अकोमोडेटेड है, इसको होल्ड करके रखा है 3 चीजों ने। सॉरी, एक चीज, इनको हम कहते हैं सीलरी मसल्स। क्या कहते हैं? तो ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है ना, इट इज द फंक्शन ऑफ द सीलरी मसल्स माय डियर। तो ये बार बार एग्जाम में आता है कि फॉर द पावर ऑफ एकोमोडेशन विच इज रेस्पॉन्सिबल, इट इज द सीलरी मसल्स। ऊपर 3 नीचे 3, सो देयर इज 3 पेयर्स ऑफ सीलरी मसल्स, 3 पेयर्स ऑफ सीलरी मसल्स। तो व्हेन यू सी, देखिए 2 पॉइंट्स आपको क्लियर करना है। अगर मान लीजिएगा आप जब ऑब्जेक्ट देखते हो, वो आपके सामने लाइक 25 सेंटीमीटर्स पे है। इफ द ऑब्जेक्ट इज नियर यू एंड इट इज एग्जैक्टली एट 25 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है यूर आई इज एकोमोडेटेड, यू कैन इजीली सी दैट वेरी ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपका अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, मान लीजिएगा एट इंफिनिटी, तो आपको अपने आप को पूरा रिलैक्स करना है, ऐसे रिलैक्स करना है। एट द टाइम यूर आई इज सेड टू बी अनएकोमोडेटेड। लेकिन अगर आपकी जो आंखें हैं, उसके सामने 25 सेंटीमीटर से भी लेस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो आपको क्या करना है? आपको ऐसे करना है, अपने आंखों पे एक टेंशन लाना है। तो दोनों सूरतों में नीदर less than 25 centimeter or more than 25 centimeter. In both the cases, what you have to do, you have to either relax the eye, you have to contract the eye. Are you getting my point? But when the object is at 25 centimeter, it means that eye is accommodated. So when is eye accommodated? When the object is placed at 25 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट अब 25 सेंटीमीटर भी ज्यादा है, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड फार पॉइंट। अगर ये 25 सेंटीमीटर पे है, तो इट इज कॉल्ड नियर पॉइंट। So what is near point of eye? Near point of eye is exactly at 25 centimeter and far point is beta at infinity. I hope it is clear to you. I hope these were the simple points that you have to remember when you are actually discussing the functions and working of the eye. अगर हम इनकी difference अब निकालेंगे, near point and far point, that is called a range of vision. Simple है, that is called a range of vision. तो इस तरह से आज हमारा जो टॉपिक रहा है वो था वर्किंग एंड फंक्शन ऑफ द आई, एंड बहुत सारे पॉइंट्स मैंने इन टर्म्स ऑफ द टर्म्स दैट आर रिलेटेड विद द फंक्शनिंग ऑफ द आई, वो भी हमने आज डिस्कस किए। आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get my latest notifications. Okay, thank you. May Allah bless.